शुरू करें हम लोग। A very Ms. Preeti Swaraj, research scholar, Nalanda Mahabihar, on behalf of Scholars Discussion Forum, addressing this national webinar on politics of external powers in Central Asia. Today, we are glad that Dr. Sailendra Kumar, Associate Professor, Bhagalpur University, is with us. Now, I want to give this stage to Mr. Kamlesh Paswan to welcome our distinguished speaker and all our participants. Over to you, Kamlesh ji. Thank you, Preeti ma'am. Very warm welcome everyone to our national webinar on the topic of politics of external powers in Central Asia. Organized by the Scholar Discussion Forum, we are delighted to have you all here today to discuss this important topic. Central Asia is a region that has been at the crossroad of world civilization for centuries. It has a rich history and culture, and its strategic location has made it an area of interest for many external powers. In recent years, we have seen a growing interest from countries such as Russia, China, and the United States in the region. We will also explore the motivation and strategy of these external power in Central Asia. We will also discuss the impact of their involvement on the region and its people. We are honored to have with us today Dr. Shailendra Kumar, Associate Professor in the Department of Political Science at JP College, Narayanpur, TMB Bhagalpur University, Bhagalpur. He has completed MA, MPhil and PhD from JNU. He was a Senate member of Tilka Manjhi University from 2011 to 2018. Apart from Indian language, he is also expert in Afghani and Russian language. He was awarded as a Best Program Officer at NSS in 2022. Dr. Salen Kumar is a distinguished speaker and an expert in the field of political science. He will share his insights and expertise on this topic. Once again, welcome to our national webinar on the politics of external power in Central Asia, organized by the Scholar Discussion Forum. We look forward to your participation. Thank you. Over to you, Preeti ma'am. Thank you, Kamlesh ji. As we know that in the 1990s, there were some key players in Asia like Turkey, Iran, India, China, Russia, and United States, which achieved a provisional equilibrium. Russia maintained its traditional dominance in its southern backyard. China comes as a fast rising power and enjoying increasing economic relations with the Central Asian countries. It is gaining growing political influence in the region and trying to avoid confrontation with Moscow. United States, if we talk about the United States, the United States as the sole superpower of the world has a global domination interest and an emergent anti-terrorism task at hand in the region. After all the wars of the 20th century, cold or hot war, only one superpower remained. In this perspective, if you see all the perspective, then we can see that America needed special attention. When American President Mr. Bush said that the best hope for peace in our world is the expansion of freedom in all the world. During his second inaugural program, when he come in his inaugural program, he joined with a long list of American presidents from Woodrow Wilson to Ronald Reagan, who maintained that the triumph of democracy throughout the world would eliminate the prospects of war. For the new game of the power politics in Central Asia, important factors such as the political culture, traditional relations, energy interest, and the strategic imperatives are all being contemplated. This lecture aims to explore further on these issues
and to enable a bit of complexity of power politics in Central Asia. Now I invite Dr. Sailendra sir to explore knowledge on this topic. Welcome, sir. Over to you, sir. Your mic is muted, sir. Sir, unmute yourself. Your mic is mute. Hello. Yes, sir. Now we can carry on. Thank you very much for calling me to deliver lectures on such an important topic. जैसा कि आप सब लोगों ने कहा कि सेंट्रल एशिया दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। जैसा कि इसके नाम में है सेंट्रल यानी केंद्र, ये हाल के वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिक क्षेत्र बन गया है। जैसा कि we all know that after the disintegration of Soviet Union, these 5 Central Asian states has emerged. ये अलग बात है कि हम लोग अभी सिर्फ 5 देश जिसमें कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन 5 देशों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये अलग बात है कि इन सेंट्रल एशिया में कुछ विद्वान और भी देशों को शामिल करते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ इन 5 देशों के मध्य जो है अपनी बात को कंसंट्रेट करेंगे। 1990 का जो दशक रहा है, ये दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण दशक रहा है। इस दशक में 2 बड़ी घटनाएं हुई। एक घटना सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन, विघटन, और इस विघटन के बाद 15 राज्यों का उदय हुआ, और इस विघटन के साथ ही दुनिया से शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया। वो शीत युद्ध जिसने 1945 से लेकर करके 1990 तक दुनिया में दहशत फैला के रखा था। लेकिन इस शीत युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया से ये भय समाप्त हो गया। एक चीज दुनिया को जो समझ में नहीं आई वो ये थी कि जिस सोवियत संघ ने अपने स्थापना काल 1917 से लेकर के 1990 तक जिस प्रकार से सैनिक और आर्थिक रूप में दुनिया में जिस प्रकार से अपनी पहचान बनाई, क्या कारण था कि वो पहचान खत्म हो गई। हालांकि ये हमारे चिंतन का विषय नहीं है, लेकिन इस विघटन के बाद जो नए राष्ट्र बने, जिन नए राष्ट्रों का दुनिया के मानचित्र पर उदय हुआ,
उन राष्ट्रों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि ये वैसे राष्ट्र थे जिन्हें कि बिना संघर्ष के आजादी मिली थी। जब कोई राष्ट्र अपने इंडिपेंडेंस के लिए संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है, तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। फ्यूचर के लिए एक प्लान होता है, लेकिन इन राष्ट्रों के पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं था, कोई आजादी के लिए तैयार नहीं थे। जब अचानक इनको स्वतंत्रता मिली तो उनके सामने राष्ट्र निर्माण और शांति की जरूरत पड़ी, क्योंकि किसी भी न्यू स्टेट के लिए दो बड़ी समस्याएं होती हैं। एक समस्या एक स्ट्रांग गवर्नमेंट की, और दूसरी समस्या राज्य में शांति स्थापना बनाते हुए विकास के पथ पर अग्रसर करना। सेंट्रल एशिया के सामने ये दोनों समस्याएं मुंह बाए खड़ी थी। जहां तक एक मजबूत सरकार की स्थापना का प्रश्न था, सेंट्रल एशिया के देशों के सामने ये समस्या थी कि आखिर किस प्रकार की सरकार की स्थापना की जाए, क्योंकि उनके मन में जिस प्रकार से इंडिया ने अपने फ्रीडम स्ट्रगल में किस प्रकार की सरकार होगी नहीं होगी, उसका संविधान कैसा होगा नहीं होगा, इन सब पर भारत ने पहले से तैयारी कर रखी थी। और इसका परिणाम ये हुआ कि आज भारत एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में अपने आप को विश्व में स्थापित किया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को हम देख सकते हैं कि उसकी क्या हालत हो गई है। उसी प्रकार से सेंट्रल एशिया के देश के सामने भी एक गंभीर प्रश्न पैदा हुआ कि किस प्रकार की सरकार की स्थापना की जाए। और इन्हीं सब को लेकर के दुनिया के देश, चूंकि सेंट्रल एशिया जिस देश से जुड़ा हुआ था वो उस देश में साम्यवादी सरकार थी, और उसके जो अपोजिशन थे, दुश्मन थे, वो पूंजीवादी सरकार थी, अमेरिका, जो कि हर हाल में सोवियत संघ को कमजोर देखना चाहती थी। और उसके विघटन के बाद अमेरिका का एक उद्देश्य पूरा हो गया, जो कि एक बड़ा दुश्मन हाशिए पर आ गया। इसलिए वहां पर जो भी देश थे, बाहरी देश थे, वो सभी चाहते थे कि उनके सेंट्रल एशिया में उनके मनपसंद सरकार बने। एक तरफ ईरान, टर्की, चाइना, ये सारे राष्ट्र थे जो कि अपने अपने तरह से अपने अपने जो ऐतिहासिक संबंध रहे हैं सेंट्रल एशिया के साथ, उसको भुनाने में लगे। अमेरिका, जो कि हमेशा से डेमोक्रेसी को दुनिया भर में प्रमोट करता है, और जिस डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है वो डेमोक्रेसी यूएसए के टाइप का होना चाहिए, ताकि उनके हितों को साधा जा सके। इसलिए अमेरिका ये हमेशा कोशिश करता रहा कि सेंट्रल एशिया में उनके पसंद की सरकार बने, ताकि उसका प्रभाव सेंट्रल एशिया में स्थापित हो सके। यूएस का जो मुख्य उद्देश्य था वो था रूस और चीन दोनों को कंटेन करना, क्योंकि दुनिया में
रूस का तो विघटन हो गया, लेकिन चीन एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में यूएस को चैलेंज देने के लिए सामने खड़ा था। इसलिए अमेरिका का उद्देश्य रूस के साथ साथ चीन को भी कंटेन करना था, क्योंकि आज हम सभी जानते हैं कि दुनिया में चीन ने सबसे ज्यादा कर्ज दुनिया में बांटे हैं, और वे देश हैं जो कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हैं, जहां पर उनको बिजनेस करना बहुत आसान है। इसलिए अमेरिका का उद्देश्य चीन को सेंट्रल एशिया में कंटेन करना सबसे पहला प्रायोरिटी था। यूएस को लगता है कि चीन अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, जो कि ईस्ट एशिया से लेकर के ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट से लेकर के यूरोप तक अपना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बना रहा है, जिससे इन सभी देशों के साथ यूरोप को भी जोड़ा जा सके। क्योंकि चीन हर दिन हमेशा ये कोशिश में रहता है कि उनका संपर्क दुनिया के देशों से हो, और ये संपर्क व्यापारिक रूप में ज्यादा। इसलिए उसने BRI प्रोजेक्ट को बनाया, जो कि सेंट्रल एशिया होते हुए यूरोप तक पहुंचा। सेंट्रल एशिया, चूंकि हमने कहा कि न्यू राष्ट्र है, नए देश हैं, जहां की पॉलिटिकल सिस्टम अभी मैच्योर नहीं है, और जो पॉलिटिकल सिस्टम मैच्योर नहीं होता है वहां वो बाहरी देशों के प्रभाव में जल्दी से आ जाता है। इसलिए उसने सेंट्रल एशिया को, चूंकि पूंजी का अभाव नहीं था, इसलिए उसने सेंट्रल एशिया को अपना शिकार बनाया। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ये चाहता था कि सेंट्रल एशिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना हो, जिससे वो अपना राष्ट्रहित को साध सके। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में फॉरेन पॉलिसी को संचालित करने में सुविधा होती है। इसलिए अमेरिका चाहता था कि सेंट्रल एशिया में एक डेमोक्रेटिक और स्थिर सरकार बने, जिससे वहाँ की सरकार के साथ, वहाँ के लोगों के साथ संबंध बनाना आसान हो सके। इसलिए उसने सेंट्रल एशिया के साथ अपने संबंध को बनाने में प्राथमिकता दिया। अमेरिका का उद्देश्य सेंट्रल एशिया में एनर्जी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देना था, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका का संबंध मध्य पूर्व से, जहां जो कि दुनिया को तेल और गैस का सप्लाई करता है, वहां से उसके संबंध खराब हो रहे थे। उसके संबंध खराब होने का एक कारण था ईरान के साथ उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके साथ ही अमेरिका का इजराइल को सपोर्ट करना। अमेरिका का इजराइल जो पॉलिसी है, उसके कारण मध्य पूर्व के देश के साथ उसके संबंध खराब हो गए थे, या यूं कहें कि इस्लामिक देशों के साथ उसके संबंध खराब हो गए थे। और ये बहुत अच्छा मौका था अमेरिका के लिए, जिससे कि वो मध्य पूर्व के साथ साथ एक ऑल्टरनेटिव तैयार कर सके। अर्थात ऑल्टरनेटिव का तात्पर्य ये हुआ, मेरा उद्देश्य कहने का उद्देश्य है कि जो वाइल्ड
और गैस का सप्लाई मध्य पूर्व से होता है, वो सप्लाई सेंट्रल एशिया से भी हो। क्योंकि सेंट्रल एशिया ऑयल और मिनरल गैस में के भंडारण में या यूं कहें कि वहाँ पे बहुत बड़ा भंडार है, जिसको कि ग्लोबल मार्केट से इंटीग्रेट करने की जरूरत थी। और यदि ये इंटीग्रेशन सफल हो जाता है तो अमेरिका की निर्भरता मध्य पूर्व से हट जाएगी, जिससे कि वे अधिक से अधिक अपनी बातों को दुनिया के सामने मनवा सकते हैं और एक नया रास्ता उनको एक नए उनको नए जो क्षेत्र हैं उस पर वर्चस्व स्थापित करने का रास्ता मिल जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, इस्लामी कट्टरवाद, जिससे कि आज पूरी दुनिया त्रस्त है। इस्लामी कट्टरवाद तेजी से दुनिया में फैल रहा था। अफगानिस्तान से सोवियत संघ के विड्रॉल के बाद सेंट्रल एशिया के देश, जिसमें कि अधिकांश इस्लाम को मानने वाले थे, उन पर इस्लामिक स्टेट बनाने का जो प्रेशर था वो बढ़ता जा रहा था। इसके कारण अमेरिका बहुत परेशान था। अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया परेशान थी, यहाँ तक कि चीन भी परेशान था। इसलिए इसको रोकना बहुत महत्वपूर्ण था और इसलिए अमेरिका ने सेंट्रल एशिया को विभिन्न प्रकार के सहायता ऑफर किए। वहाँ पर उसने अपना मिलिट्री बेस भी बनाया, जिससे कि अफगानिस्तान में आतंकवादियों के साथ सफलतापूर्वक जो है ऑपरेशन किया जा सके। क्योंकि अमेरिका को डर था कि ईरान, जो कि सेंट्रल एशिया से नज़दीक है और उसका प्रभाव सेंट्रल एशिया पर है, वो कहीं इस क्षेत्र में डोमिनेंट ना हो जाए। क्योंकि ईरान के संबंध अमेरिका से पहले ही बिगड़े हुए थे और वो और आगे न बढ़े, इसके लिए अमेरिका ने भरपूर प्रयास किया। इसलिए वो चाहता था कि कुछ भी हो, इस्लाम को इस क्षेत्र में रोकना चाहिए, रोका जाना चाहिए। यही कारण है कि अमेरिका ने ऐसी नीतियां बनाई और वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उसने सपोर्ट किया, जिससे कि सेंट्रल एशिया में इस्लामिक सरकार की स्थापना न होने पाए। अमेरिका के साथ ही रशिया, जिसके बारे में जैसा आप लोगों ने कहा कि सेंट्रल एशिया रशिया का एक्सटेंशन है, सदर्न पार्ट रशिया का एक्सटेंशन है। और वहाँ पर शुरुआती दौर में रशिया ने उस पर ध्यान देना उचित नहीं समझा था, क्योंकि उसे लगता था कि सेंट्रल एशिया एक बर्डन है। दूसरी तरफ रशिया ये भी समझता था कि यदि हम सेंट्रल एशिया को छोड़ दें और अपने संबंध वेस्टर्न कंट्री के साथ बनाएं, तो हमें जो खर्च सेंट्रल एशिया पे करना था वो तो बचेगा ही। इसके साथ ही अमेरिका से, वेस्टर्न यूरोप से मदद मिलेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनको लगा
कि जो शुरू में उनको प्रॉमिस किया गया था, उस प्रॉमिस से वो उनको धोखा मिला है। इसलिए कहा जाता है कि वेस्ट से जो उसका हनीमून था वो ख़त्म हो गया, और ख़त्म होने के बाद फिर से वो उन क्षेत्रों पर ध्यान देने लगा जहां से कि उसके ऐतिहासिक संबंध थे। इसलिए उसने सेंट्रल एशिया पर फिर से ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि उसे समझ में आने लगा कि सेंट्रल एशिया उससे उसका संबंध ऐतिहासिक है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। उसके साथ ही स्ट्रेटेजिकली, रणनीतिक रूप से सेंट्रल एशिया उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ रणनीतिक रूप से ही नहीं, बल्कि उनके जो व्यापारिक संबंध रहे हैं शुरुआत से, सेंट्रल एशिया रॉ मटेरियल सप्लाई जोन रहा है रशिया के लिए। सोवियत काल में रूस और सेंट्रल एशिया की इकोनॉमी बिल्कुल जुड़ी हुई थी, और उसने सेंट्रल एशिया को कभी भी एक एंटिटी बनने नहीं दिया था। ये रशिया का जो है यूं कहिए कि इंपीरियलिस्ट पॉलिसी के तरह जो है उसने उसको यूज किया था, जिसके कारण एक एंटिटी बनके नहीं रह गया था। उसको सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई जोन बनाया था। तो डेवलपमेंट सेंट्रल एशिया के लिए भी इम्पोर्टेंट था, डेवलपमेंट रशिया के लिए भी इम्पोर्टेंट था, और यदि दोनों का कोऑर्डिनेशन बन जाए तो ये और बेहतर हो सकता था। इसलिए रशिया ने एक इकोनॉमिक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन बनाया, जो 2015 में बनाया, क्योंकि एक फोरम के माध्यम से यदि देशों को जोड़ कर करके उनके साथ संबंध बनाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए रशिया ने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के माध्यम से आर्थिक रूप से सेंट्रल एशिया के सभी देशों को जोड़ा, और जिसके कारण उनके बीच जो ट्रेड बैरियर थे उनको खत्म किया, ताकि उसमें शामिल जितने भी देश हैं उनको फायदा मिल सके। इसके साथ ही दोनों देश के बीच जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पहले से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसमें कुछ मॉडिफाई करने की आवश्यकता थी जिससे कि सबको जोड़ा जा सके। इसलिए रशिया ने सेंट्रल एशिया के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे काम किया, जिससे कि संबंधों को और भी स्ट्रॉन्ग किया जा सके। सेंट्रल एशिया के साथ जो संबंध हैं उसमें प्रमुख रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसमें संबंध है उनमें मुख्य रूप से पाइपलाइन, रोड और टेलीकम्युनिकेशन, इनका जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि सेंट्रल एशिया के कोई भी देश इंडिपेंडेंटली यूरोप के देशों में नहीं जा सकते थे, वहाँ से बिजनेस नहीं कर सकते थे, वहाँ तेल का सप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि सारा रूट जो है रशिया के तरफ से जाता था। इसलिए सेंट्रल एशिया के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण रहा कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो ट्रेड है वो रशिया के साथ हो। इसलिए फॉर द टाइम बीइंग उसने भी रशिया को सपोर्ट किया और रशिया से अपने संबंध आगे बढ़ाया। इसका एक मुख्य कारण ये भी था
कि जैसा कि दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने में एक जो बैरियर होता है वो लैंग्वेज बैरियर होता है, तो वो लैंग्वेज बैरियर रशिया और सेंट्रल एशिया के सामने नहीं हुआ, क्योंकि पहले से भी जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया में के जो लोग हैं उनको रशियन लैंग्वेज की जानकारी थी, इसलिए कभी भी दोनों के संबंध को बनाने में लैंग्वेज कभी आड़े हाथ नहीं आया। और रशिया के माध्यम से एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो या इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, वो स्ट्रक्चर जो है अचानक से नहीं मिटाया जा सकता था। और उस स्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए रशियन एक्सपर्टीज की जरूरत थी, क्योंकि जैसा हमने कहा कि एक नए राष्ट्र के लिए, एक नए देश के लिए डेवलपमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही एक बात और भी महत्वपूर्ण होती है कि नए देश में पीस एस्टेब्लिशमेंट, चूंकि रशिया के इंडिपेंडेंट एंटिटी बनने के बाद वहाँ पर जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म था उसने तेजी से अपना वो प्रभाव बढ़ाना शुरू किया, जिसको कंटेन करने के लिए कोई भी देश, चूंकि हम सब जानते हैं कि सेंट्रल एशिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और एक कंट्री ऐसा है जो कि डबल लैंडलॉक्ड है, जिसका कि दुनिया के देश से डायरेक्ट संपर्क नहीं था। और यही कारण है कि जो भी प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में रशिया महत्वपूर्ण योगदान दे सकता था, क्योंकि रशिया ही एक कंट्री था बाहरी देशों में जिसे कि उसका रूट कॉज पता था। जो भी प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज क्या है ये रशिया को पता था, और उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए ये भी उसे पता था। हम कभी ये भी कह सकते हैं कि कुछ जो प्रॉब्लम था वो रशिया के द्वारा ही क्रिएट किया गया था, क्योंकि जब भी किसी देश को या किसी भी क्षेत्र को यूज किया जाता है या कॉलोनी बनाया जाता है तो वहां पर ऐसी व्यवस्था की जाती है जिससे कि कुछ लोग उस पर डिपेंडेंट रहें। इसलिए जो भी प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम में रशिया का भी कुछ हाथ था, इसलिए रशिया जो है उसको सही तरीके से कंटेन कर सकता था, और रशिया ने ऐसा किया भी। ताजिकिस्तान में जो सिविल वॉर हुआ या फिर नागोर्नो कराबाख में जो संघर्ष हुआ उसको खत्म करने में रशिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि रशिया को पता था कि यदि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म स्प्रेड करता है दूसरे क्षेत्रों में तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं रशिया पर भी पड़ेगा, क्योंकि वो रशिया से जुड़ा हुआ है। इसलिए उसके लिए जरूरी था कि जो सदर्न पार्ट है वहां पर स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि वहां स्टेबिलिटी नहीं बनेगी तो जो दूसरे एक्सटर्नल पावर हैं वहां पर स्टेबिलिटी के बहाने अपना पैर जमा लेंगे, और पैर जमाने के बाद वो वहां से निकलेंगे नहीं। जैसा कि हम सभी जो जानते हैं, देखे हैं कि अमेरिका कहीं भी जाता है तो वो वहां से निकलता नहीं है, चाहे वो अरब में देखें, सऊदी अरब में, या अरब के और भी कंट्री में देखें, कुवैत में देखें, ईरान इराक में हमने देखा ही, और दूसरे कंट्री में ईस्ट एशिया के देशों में भी उसने जो काम किया, जो स्थिति पैदा की, उससे हम सब लोग अवगत हैं, उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन ये भय था कि यदि अमेरिका वहाँ पे आ जाता है तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, और वो किसी न किसी प्रकार से रशिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। इसलिए उसकी कोशिश थी कि
ऐसा किया जाए, ऐसी स्थिति पैदा की जाए जिससे कि बाहरी देश वहां पे अपना जो प्रभाव है वो स्थापित नहीं कर सके। इसलिए उसने स्टेबिलिटी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। रशिया का उद्देश्य वहां सिर्फ आर्थिक नहीं था, बल्कि चाइना को भी कंटेन करना था, क्योंकि चाइना जिस प्रकार से सेंट्रल एशिया में अपना प्रभाव जमा रहा है, उसमें रशिया को डायरेक्ट खतरा हो गया। लेकिन अभी स्थिति ये है कि वो चाइना से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि रशिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि चाइनीज सपोर्टेड हैं। चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, रशिया में चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। इसलिए अभी रशिया इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी दूसरे कंट्री को ऐसा मौका दे जिससे कि भविष्य में उसके लिए खतरा उत्पन्न हो जाए। दूसरी बात, अभी जो घटना चल रही है रशिया यूक्रेन के बीच, उसमें रशिया को एक इमेज बिल्डिंग करनी है, जिससे कि जो भी उसके पड़ोसी राष्ट्र हैं उनमें ये विश्वास पैदा हो सके कि वो उसके खिलाफ नहीं है। इस इमेज को बदलने के लिए रशिया को कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे और करने पड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने संबंधों को भी बढ़ा रहा है। इसलिए सेंट्रल एशिया में जो अमेरिका के बाद जो दूसरे महत्वपूर्ण देश रशिया है, या यूं कहेंगे कि रशिया सबसे महत्वपूर्ण देश है, उसने आर्थिक और सैनिक दोनों रूप से सेंट्रल एशिया को मदद किया है। शुरुआती दौर में जब रशिया की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उस समय रशिया धीरे धीरे अपने आप को सेंट्रल एशिया से दूर ले गया। लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद भी हम देख रहे हैं कि रशिया अपने इकोनॉमी को धीरे धीरे पटरी पर ला रहा है, और एक बार जब उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से पटरी पर आ जाएगी तो फिर उसके लिए सेंट्रल एशिया या और भी जो दूसरे उसके पड़ोसी देश हैं वहाँ पर अपने जो आर्थिक संबंध है उसको बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और जिस प्रकार से रशिया ने अपने इकोनॉमी को रिवाइव किया है, वो रशिया के लिए और सेंट्रल एशिया दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रशिया के बाद एक इम्पॉर्टेंट कंट्री ईरान है, जिसके की संबंध सेंट्रल एशिया से ऐतिहासिक हैं। ताजिकिस्तान जो पर्शिया का एक समय पार्ट था, वहाँ अभी भी जो लैंग्वेज बोली जाती है वो पर्शियन ही है, उसका डायलेक्ट डिफरेंट है। जैसे कि हमारे यहाँ जो क्या ये मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, उसी प्रकार से लैंग्वेज सेम है, स्क्रिप्ट सेम है, लेकिन डायलेक्ट डिफरेंट है। तो उस ऐतिहासिक आधार पर ईरान सेंट्रल एशिया से अपने संबंध को मजबूत करना चाह रहा है। इसलिए ईरान पहला कंट्री है जिसने कि सेंट्रल एशिया के कुछ देशों को मान्यता प्रदान की। ईरान का इम्पोर्टेंस ताजिक सिविल वॉर के समय भी देखा गया, जब ताजिकिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथी अपना वो सर उठा रहे थे। उस समय ईरान ने मजबूती से
सेंट्रल एशिया का साथ दिया और वहाँ पर जो संघर्ष था उसको समाप्त करने में रूस के साथ अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इस कारण ईरान का जो इमेज है, जो उसका जो रोल रहा, उसने सेंट्रल एशिया को प्रभावित किया और उसी प्रभाव के कारण ईरान अपना संबंध जो है सेंट्रल एशिया के साथ बनाना चाह रहा था। ईरान के लिए सेंट्रल एशिया इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका के साथ ईरान के संबंध बहुत खराब हैं और अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान किसी भी तरह से सेंट्रल एशिया में मजबूत बने, क्योंकि यदि ईरान सेंट्रल एशिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा देता है तो अमेरिका की स्थिति खराब हो जाएगी। ईरान और अमेरिका में एक फर्क है कि ईरान सेंट्रल एशिया से काफी करीब है और अमेरिका दूर है। ईरान एक ऐसा कंट्री है जो कि सेंट्रल एशिया को कई मायने में मदद कर सकता है। सबसे जो महत्वपूर्ण जो उसका ये है वो है ईरान सबसे शॉर्टेस्ट रूट है सेंट्रल एशिया को वर्ल्ड से जोड़ने का। INSTC जो प्रोजेक्ट है, जिसको कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहते हैं, ये लगभग 7200 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जो कि रेल्स रोड होते हुए समुद्र के रास्ते जो है समुद्र के रास्ते से दुनिया को जोड़ता है। और यदि ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो फिर सेंट्रल एशिया जो है विश्व के बाकी देशों से जुड़ जाएगा। और ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि भारत भी शामिल है, ईरान रशिया भी शामिल है। तो यदि भारत और रशिया का सपोर्ट जिस प्रोजेक्ट में मिलता है, यदि वो प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो सुएज कैनाल के माध्यम से वो दुनिया के देशों से जुड़ जाएगा। और वो जुड़ने के बाद जो सेंट्रल एशिया है, जो लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसको अपने व्यापार करने में सुविधा होगी। इसलिए रशिया अपने ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर वो चाहता है कि सेंट्रल एशिया जो है वो उसके साथ संबंध बनाए, जिससे कि दोनों देशों को फायदा हो। ईरान को भी जो रशिया ये अमेरिकन वो पाबंदी के से जो दिक्कतें आ रही हैं, उससे उसको उबरने का मौका मिल जाएगा। इसके साथ ही एक और मुस्लिम इस्लामिक कंट्री टर्की है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल एशिया में टर्की जो लोग हैं उनकी भी जो आबादी है बहुत अधिक है। इसलिए टर्की भी अपने उसी हिस्टोरिकल संबंध के आधार पर उससे जुड़ना चाहता है। क्योंकि टर्की नेटो का मेंबर है और यूरोप के लिए, खास करके ईस्टर्न यूरोप के लिए वो एक कॉरिडोर का काम कर सकता है। इसलिए वो चाहता है, टर्की चाहता है कि किसी प्रकार से रशिया के साथ उसके संबंध बने। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल जरूर है, क्योंकि टर्की के जो लोकेशन है और सेंट्रल एशिया का जो लोकेशन है, ये लोकेशन कुछ ऐसा है जिससे कि वो डायरेक्ट उसके संपर्क में आना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जिस प्रकार से चाइना BRI प्रोजेक्ट के माध्यम से यूरोप से जुड़ने जा रहा है, वो रास्ता टर्की होकर के ही जाएगा। इसलिए टर्की को एक मौका मिल जाएगा कि वो
सेंट्रल एशिया से जुड़े। और इसके लिए टर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्दोगान, उसने कई बार जो है सेंट्रल एशिया के देशों में वो विजिट किया है और अपने जो व्यापार है उसको बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। और हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे टर्की और सेंट्रल एशिया के बीच जो आर्थिक संबंध है वो संबंध जो है बढ़ता जा रहा है। दूसरी आर्थिक जो स्थिति है उसके अलावे हम ये देख रहे हैं कि जो यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है वहाँ पे टर्की का जो मिसाइल है, सॉरी मिसाइल नहीं, वो ड्रोन जो है वो बहुत कामयाब हुआ है। इसके कारण टर्की आर्म्स के क्षेत्र में भी सेंट्रल एशिया को मदद कर सकता है। जहाँ की कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, वहाँ पे टर्की जो है उसको मदद कर सकता है। इसलिए टर्की जो है अपना जो निर्यात है वो नॉन मिलिट्री के साथ साथ जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसके भी उससे एक्सपोर्ट से अपने संबंध को वो प्रगाढ़ बना सकता है। लेकिन टर्की के साथ एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि एक तो हमने बताया उसकी दूरी, दूसरा उसका जो दूसरी जो उसकी इकोनॉमी है वो इकोनॉमी ऐसी नहीं है या इतना स्ट्रांग इकोनॉमी नहीं है कि सेंट्रल एशिया के देशों की जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को वो पूरा कर सकता है। और ये इस लिमिटेशन के कारण जो उनकी पहुंच है सेंट्रल एशिया से वो थोड़ी कम है। इसलिए जो अपॉर्चुनिटी उसको मिला सोवियत संघ के विघटन के बाद, क्योंकि सोवियत संघ के ज़माने में टर्की और जो रूस था, सोवियत संघ था, उसके संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन जो इनको अपॉर्चुनिटी मिली है उस अपॉर्चुनिटी को वो कैश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। टर्की के बाद जो इस क्षेत्र में एक सबसे महत्वपूर्ण देश है वो है चाइना। जितने भी एक्सटर्नल पावर हैं उनमें चाइना ही एक ऐसा कंट्री है जो कि सेंट्रल एशिया के सभी देशों को मदद कर सकता है। और इसी एडवांटेज के कारण चाइना सेंट्रल एशिया में अपना एंगेजमेंट बढ़ा रहा है। चाइना का सेंट्रल एशिया में एंगेजमेंट बढ़ाने का एक और बड़ा रीजन है, वो है रिलीजन से मेरा तात्पर्य है इस्लामिक जो उइगुर हैं जिनजियांग प्रोविंस में, वो जिनजियांग प्रोविंस में जो उइगुर रह रहे हैं उनके संबंध सेंट्रल एशिया के कई देशों में रह रहे लोगों से है। चूँकि सेंट्रल एशिया में जो अभी रिपोर्ट आई है जो तो उसमें ये कहा गया है कि सेंट्रल एशिया में लगभग 10 मिलियन से अधिक उइगुर रहते हैं। और 10 मिलियन की संख्या जो है वो बहुत बड़ी संख्या होती है, जिसका कि डर चाइना को हमेशा रहता है। क्योंकि जो उइगुर मुस्लिम हैं वो अपेक्षा करते हैं कि किसी भी प्रकार से सेंट्रल एशिया के जो उनके उइगुर मित्र हैं वो उनकी मदद करें, ताकि जो इस तुर्किस्तान का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को जो है वो पूरा किया जा सके। और यही कारण है कि चाइना जो है सेंट्रल एशिया में अपना एंगेजमेंट बढ़ा रहा है और उइगुर को जो सपोर्ट करने वाले एलिमेंट हैं
उनको कंटेन भी कर रहा है। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण जो रीजन है वो है इकोनॉमी, ट्रेड। क्योंकि जिस प्रकार से चाइना इन्वेस्ट कर रहा है BRI प्रोजेक्ट पर, उतना इन्वेस्टमेंट शायद दुनिया का कोई कंट्री नहीं कर सकता है, नहीं करने के पोजीशन में है। और उसने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सेंट्रल एशिया के कई देशों में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए और तेल गैस के जितने भी खादान थे, महत्वपूर्ण खादान थे, उन पर उसने लगभग कब्जा कर लिया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चीन जिस भी कंट्री को मदद करता है उसके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, और इस टर्म कंडीशन के कारण चीन ने कई देशों को लगभग अपना गुलाम बना रखा है। आज सेंट्रल एशिया के देशों में, जैसा कि दुनिया के देशों में चाइनीज गुड्स है, वो चाइनीज जो सस्ते माल हैं पूरे दुनिया में अपना पांव पसार रहा है। सेंट्रल एशिया भी उसका एक्सेप्शन नहीं है, वहां भी सस्ते मालों से पटा हुआ है। और चाइना जो है सेंट्रल एशिया में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है जिसकी की कोई आवश्यकता नहीं है। एक मिनट, ये बैटरी जो है थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है, एक मिनट जरा सा। ए बाबू, जरा सा इसको चार्ज में लगाओ। हम कह रहे थे कि चाइना जो है ऐसा है कि मैं मोबाइल से जुड़ूं, ये बैटरी लो हो रहा है। हाँ ठीक है सर। हाँ ठीक है सर, ठीक है, अब ठीक जुड़िए। है। हाँ हाँ इसको जरा सा जोड़। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, कि पूरा सेंट्रल एशिया जो लो प्राइस गुड्स है उससे पटा पड़ा है। और एक बात मैं कर रहा था कि चाइना कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है जिसकी कि सेंट्रल एशिया में कोई उपयोगिता नहीं है। टर्कमेनिस्तान में उसने एक ऐसा रोड प्रोजेक्ट पे काम किया जहां पे लाखों पेड़ों को काट दिया गया, और आज स्थिति ये है कि वो सिर्फ कार पार्किंग के लिए जगह बन के रह गया है, उस रोड की कोई उपयोगिता नहीं है। इससे पता चलता है कि चाइना ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पे वहां काम कर रहा है जिससे कि सिर्फ वहां इन्वेस्ट कर सके, पैसा उनको दे सके, जिसका कि इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। और चाइना का ये कंडीशन भी रहता है कि यदि वो उसको रीपे नहीं कर पाया तो वो सारा प्रोजेक्ट जो है उसके पास चला जाता है। आप चाइना में देख रहे हैं जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट पर जो है जो काम हो रहा है, तो वो धीरे धीरे वो चाइना के हाथ में चला गया। और वो चाइना जो है आज ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है उसका एक कॉलोनी बनने जा रहा है। उसी प्रकार से हम नेपाल में देख रहे हैं कि नेपाल में जिस तरह से एयरपोर्ट और सारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो सारे प्रोजेक्ट इस प्रकार से चल रहे हैं कि धीरे धीरे चाइनीज उस पर कब्जा करते जा रहा है। तो ये डर जो है सेंट्रल एशिया के देशों को है, और वो ये महसूस करते हैं
कि चाइनीज जो प्रोजेक्ट है और चाइनीज जो एड है, वो एड जो है कहीं ना कहीं से सेंट्रल एशिया को कॉलोनी बनाने की तरफ ये पुश कर रहा है। तो इसलिए इस बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि चाइना जो है इकोनॉमिकली अभी सबसे ज्यादा साउंड कंट्री है और वो जितना चाहे वो पैसा वो इन्वेस्ट कर सकता है। और ये इन्वेस्टमेंट जो है कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया को गुलाम बनाने के उसमें आ गया, क्योंकि यदि हम डाटा देखें तो किर्गिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ की 30.5% जो उसका जीडीपी है उसका वो ऋण दे चुका है, उसका लोन दे चुका है, जिसका कि दुनिया में जितना भी लोन दिया है श्रीलंका वगैरह के बाद जो है किर्गिस्तान का पोजीशन आता है, दुनिया में 5वां पोजीशन है। ताजिकिस्तान लगभग 16% से अधिक जो है उसको कर्ज दिया जा चुका है। उज्बेकिस्तान 7.5%। इस तरह से हम देखते हैं कि चाइना येन केन के कारण सेंट्रल एशिया को धीरे धीरे अपने गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। और ये जो है सेंट्रल एशिया को भी महसूस हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं से चाइना का गुलाम बनते जा रहा है, लेकिन उसके पास रास्ता नहीं है। इसलिए वो अभी चूंकि जब तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट से फ्यूचर में सेंट्रल एशिया के लोगों को भी, कंट्री को भी फायदा होगा, इसलिए कि जब प्रोजेक्ट BRI प्रोजेक्ट बन जाएगा तब सेंट्रल एशिया की जो कनेक्टिविटी है वो पूरी दुनिया से हो जाएगी, चाहे वो ईरान हो, टर्की हो, यूरोप हो, कि सबके साथ उसके कनेक्टिविटी जो है इस्टेब्लिश हो जाएगी। और एक बार यदि वो कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो गया तो सेंट्रल एशिया के जो देश हैं वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए दूसरे देशों से संबंध स्थापित कर सकता है। क्योंकि अभी वो जो लैंडलॉक्ड वाला जो वो पाबंदी मतलब बैरियर है, उस बैरियर से निकलने की आवश्यकता है। और वो यदि चाइना का अपना प्रभाव बढ़ाता है तो सेंट्रल एशिया रशिया से भी बार्गेन करने के पोजीशन में आ जाएगा। यदि रशिया और चाइना दोनों से बार्गेन करने के पोजीशन में आ जाएगा तो मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया जो है उसके जो हित हैं वो ज़्यादा साधे जा सकते हैं। और जब वो अपने टर्म्स कंडीशन पे एस्टेब्लिश करेगा तो वो जो है उसकी स्थिति और अच्छी हो जाएगी। इस डिस्कशन में यदि हम भारत के बारे में बात न करें तो ये थोड़ा सा बेईमानी होगी, क्योंकि भारत के बारे में लास्ट में इसलिए बात किया जा रहा है क्योंकि जो भारत की कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया से डायरेक्ट नहीं है। इसके बीच में जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो स्थिति है वो ऐसी स्थिति नहीं है कि जिससे कि वो इंडिया को सपोर्ट कर सके। और इसमें चूंकि POK में चाइना भी आ गया है, इसलिए चाइना भी ये नहीं चाहेगा कि इंडिया जो है सेंट्रल एशिया में इंटर कर सके। इसलिए चूंकि इंडिया का जो रिलेशन है सेंट्रल एशिया के साथ वो तब से है जब सोवियत यूनियन था। और उज्बेकिस्तान में हमारा तो वो क्या कहते हैं एक दूतावास भी, वाणिज्य दूतावास भी पहले से रहा है। ताशकंद समझौता हुआ था, हम लोग सब जानते हैं, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। तो वहाँ से हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, खास करके जो कल्चरल संबंध है वो बहुत ज़्यादा रहे हैं, अच्छे रहे हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन में भी इंडिया सेंट्रल एशिया के जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत मदद करता है, क्योंकि इंडिया की जो पढ़ाई है दुनिया में सबसे सस्ती पढ़ाई है। और इस सस्ते के चलते सेंट्रल एशिया के जो लोग स्टूडेंट हैं वो बहुत ही बड़े संख्या में
इंडिया आते हैं पढ़ने के लिए। और ये स्टूडेंट जो हैं जो यहाँ आते हैं वो उसके कारण जो है सेंट्रल एशिया इंडिया से दूरी अभी तत्काल फिलहाल बनाने में वो थोड़ा परहेज करेगा। और जब ईरान का चाबहार जो पोर्ट है वो जब फंक्शनल हो जाएगा, चूंकि चाबहार पोर्ट जो है इंडिया ने ही बनवाया है, तो उस प्रोजेक्ट के कामयाब होने के बाद, चूंकि अमेरिकन जो ये पाबंदी है उसके कारण इंडिया जो है थोड़ा सा नरम पड़ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से इंडिया पूरे दुनिया में अपना स्थान स्थापित कर रहा है, बना रहा है, उससे वो दिन दूर नहीं है जब चाबहार प्रोजेक्ट भी काम करेगा और उसके माध्यम से इंडिया जो है सेंट्रल एशिया के देशों से भी जुड़ेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सेंट्रल एशिया अभी हाल में जो बाहरी पावर हैं, बाहरी शक्तियां हैं, उनके गिरफ्त में है। लेकिन धीरे धीरे वो इससे निकलता जा रहा है और उसकी इकोनॉमी भी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। और कि सेंट्रल एशिया जो है दुनिया से अपनी कनेक्ट स्थापित करेगा, जो कि सेंट्रल एशिया के लिए और दुनिया के लिए भी एक मतलब मिसाल होगा। तो इसी के साथ हम अपना वो लेक्चर पूरा यही समाप्त करते हैं। ओवर टू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इतने इन लार्ज टॉपिक को 1 घंटे में समेट दिया और बहुत ही सिंपल तरीके से बताया। Now question answer session is open for all the participants. You can directly ask the question or can type in message box. सर Yes, anybody can ask. सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दी सर सेंट्रल एशिया पर। सर मेरा क्वेश्चन है सर कि धार्मिक कट्टरवाद किस प्रकार से सेंट्रल एशिया के देशों को प्रभावित करेगा। सर दूसरी बात देखते हैं कि सर पूरे विश्व में सर जहां सभी धर्मों में, लगभग सभी धर्मों में धार्मिक सुधार हुआ है, तो क्या आने वाले दिनों में इस्लाम में भी उस टाइप के धार्मिक सुधार की संभावनाएं हैं सर? जहां तक धार्मिक कट्टरवाद की बात है, सेंट्रल एशिया में धार्मिक कट्टरवाद धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम इंटरनेशनलिज्म की दुनिया में जी रहे हैं। इसलिए दुनिया में कुछ भी होता है तो उसका प्रभाव जो है दुनिया के दूसरे देशों पर पड़ता है। यदि ईरान के खिलाफ अमेरिका है तो ईरान के सपोर्टर भी अफगानिस्तान में है, सेंट्रल एशिया में है, सऊदी अरब में है, दुनिया के हर हिस्से में है। तो जब तक ये सपोर्ट वाला वो जो है कंसेप्ट नहीं जाएगा, तब तक ये जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का जो सोच है वो बरकरार रहेगा। और सेंट्रल एशिया में उसके बनने के बाद जिस प्रकार से मस्जिदों की संख्या में वृद्धि हुई है, और उसमें सऊदी अरब जो बहावी हैं उसने जिस प्रकार से उसको सपोर्ट किया है, ईरान से जिस प्रकार का सपोर्ट मिला है, तो उस सपोर्ट के कारण खास करके ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इन दो कंट्री में जो इस्लामिक मूवमेंट हैं, जो उसके कट्टरपंथी हैं, वो अभी भी वहाँ हैं। और ये अलग बात है कि अभी उनको दबा दिया गया है, लेकिन
हमको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान जुड़ा हुआ है, और अफगानिस्तान, जैसा कि इतिहास के जो विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे कि अफगानिस्तान कभी भी स्टेबल नहीं रहा है। और यही नहीं, अफगानिस्तान ने कभी भी उनके खिलाफ भी वही किया, अमेरिका आए उसके खिलाफ भी वही किया, पाकिस्तान ने उसको समर्थन किया, पाकिस्तान के खिलाफ भी वही है। अब देखते हैं कि चाइना का जो वहाँ पे पॉलिसी है, चाइना कहाँ तक कामयाब हो सकता है। इसलिए जब तक अफगानिस्तान की स्थिति वोलाटाइल रहेगी तब तक सेंट्रल एशिया में इस्लाम का जो वो है प्रभाव है वो बना रहेगा। ये अभी नियर फ्यूचर में खत्म होने वाला नहीं है। थैंक यू सर। एनीबडी एल्स? धन्यवाद। लगता है सबके डाउट क्लियर हो गए, लेकिन मेरा सर एक डाउट है। सर, रिसेंट के दिनों में जो हम लोग देख रहे हैं कि रूस के यूक्रेन पर जो हमला हुआ, उसके बाद सेंट्रल एशिया के जो देश है उसका रसिया के रिलेशन पर क्या असर पड़ेगा? उन लोगों की जो इंटरनेशनल रिलेशंस होती हैं उसके ऊपर पूरे सेंट्रल एशिया में रसिया का क्या असर पड़ेगा उसके संबंधों पर? इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि यूक्रेन पर रशिया ने हमला क्यों किया। क्योंकि यूक्रेन जो है वो धीरे धीरे नेटो का पार्ट बनना चाह रहा था, नेटो में शामिल होना चाह रहा था। इसलिए रशिया को ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था कि उसके बॉर्डर पे नेटो आ जाए। दूसरी बात, यूक्रेन में रशिया के कामयाबी का जो वो रीजन है वो ये है कि उसके बॉर्डर एरिया में के जो ये प्रोविंस हैं वहाँ पे रशियन का पॉपुलेशन जो है ज़्यादा है, जिससे कि रशिया को वहाँ पर सपोर्ट मिला, जिसके कारण उस क्षेत्र से वो आगे बढ़ सका। सेंट्रल एशिया के बारे में ये जो डाउट होता है तो वो कजाकिस्तान से शुरू होता है, क्योंकि कजाकिस्तान में लगभग 30% रशियंस रहते हैं और 30% जो पॉपुलेशन है वो किसी एक कम्युनिटी का किसी दूसरी कंट्री में, वो भी बॉर्डरिंग एरिया में। ऐसी स्थिति में ये संभावना बनती है कि सोवियत संघ का ये रूस का प्रभाव जो है कजाकिस्तान पर रहेगा, और हो सकता है कि नियर फ्यूचर में रूस जो है कजाकिस्तान के खिलाफ भी यूक्रेन जैसा ही एडवेंचर करे। लेकिन मेरे समझ से कजाकिस्तान, यूक्रेन ने जो गलती की है नेटो को सपोर्ट करके या नेटो में शामिल होने के लिए, कजाकिस्तान ने वो गलती नहीं की है। दूसरी बात कि रशिया का जो है अभी इमेज बिल्डिंग का प्रोसेस चल रहा है, वो इस इमेज को बनाने में लगा हुआ है कि यूक्रेन पर जो हमला किया गया उसके पीछे रशिया दोषी नहीं है बल्कि यूक्रेन खुद दोषी है। यदि ये काम वो कजाकिस्तान के खिलाफ करता है तो दुनिया ये मानने लगेगी कि ये रूस ने अपने हेजिमोनी को स्थापित करने के लिए कजाकिस्तान पे हमला किया, और हो सकता है कि वो और भी देशों पर जहाँ पे रशियन रहते हैं वहाँ भी हमला कर सके। और यदि ऐसा होगा तो उसका इमेज पूरे सदर्न बॉर्डर पे, कजाकिस्तान से लेके पूरे सेंट्रल एशिया पे उसका असर पड़ेगा, और बाद में जो उसकी स्थिति और खराब हो जाएगी, इमेज और खराब हो जाएगा। इसके साथ ही रशिया अभी अपना इकोनॉमी को सुदृढ़ करने में लगा हुआ है, और जब तक उसकी इकोनॉमी सुदृढ़ नहीं हो जाती है मुझे नहीं लगता है कि वो इस प्रकार का किसी एडवेंचर पर काम करेगा। और जो वेस्ट का ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था कि
आप इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप देखेंगे कि जो भी बड़े देश हैं, खास करके जो आर्म सप्लायर देश हैं, आर्म मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, वो दुनिया लड़ाई की स्थिति बनी रहे ताकि वो अपना हथियार सप्लाई करता रहे। और जब इस प्रकार की लड़ाइयाँ होती हैं, जो छोटे छोटे स्तर पर लड़ाइयाँ होती हैं, तो वो लड़ाई सिर्फ आर्म्स को टेस्ट करने के लिए होता है, ज्यादातर आर्म्स को टेस्ट करने के लिए होता है। और उस टेस्ट में जिस आर्म्स की कामयाबी होती है, उस आर्म्स को दूसरे कंट्री में बेचा जाता है, और यूक्रेन में यही हो रहा है। इसलिए हम तो ये मानते हैं कि यूक्रेन जो है वेस्ट का शिकार हो गया, और वेस्ट इसमें कामयाब हो गया और यूक्रेन इसमें हार गया फिलहाल। और इस कारण जो है कजाकिस्तान में इस प्रकार का एडवेंचर अभी वो नहीं कर रशा नहीं कर सकता है। और धीरे धीरे जिस प्रकार से स्थिति सुधरती जा रही है, ये अलग बात है कि हर कंट्री जो इंडिपेंडेंट कंट्री है, सॉवरेन कंट्री है, उसको ये अधिकार है कि वो दूसरे कंट्री से अपने टर्म्स कंडीशन पे रिलेशंस स्थापित करें। कजाकिस्तान को भी अधिकार है जिस प्रकार से यूक्रेन को अधिकार था, लेकिन कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि उसके बॉर्डर पे उसके एनिमी हो। इसलिए यूक्रेन के अलावे कजाकिस्तान को अपने बॉर्डर पे एनिमी बना करके रशिया कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। की और कोई क्वेरी है? सर मेरा क्वेश्चन है, भारत का जो इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान पे 2 से 3 बिलियन, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस युद्ध का? अफगानिस्तान में? जी सर। देखिए, अफगानिस्तान और यूक्रेन ये दोनों दो कंट्री हैं, और यूक्रेन की जो दूरी है अफगानिस्तान से वो बहुत अधिक है। यूक्रेन से संबंध, भारत के जो संबंध हैं, क्योंकि भारत यूक्रेन को डायरेक्ट सपोर्ट इसलिए भी नहीं कर रहा है कि उसने क्राइसिस में पाकिस्तान को सपोर्ट किया था और भारत उसको सबक सिखा रहा है। ये अलग बात है कि इंडिया को स्टैंड लेना चाहिए, और अप्रत्यक्ष रूप से इंडिया ने स्टैंड लिया भी है कि यूक्रेन और रूस को बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करना चाहिए। जहां तक अफगानिस्तान में इंडिया के इन्वेस्टमेंट का सवाल है, तो इंडिया हमेशा से अफगानिस्तान को सपोर्ट करता रहा है, और इंडिया का जो सपोर्ट रहा है अफगानिस्तान को, वो हमेशा स्ट्रक्चरल रहा है। कभी भी वहां पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसने नहीं किया। जिस प्रकार से पाकिस्तान और अमेरिका या ईरान जिस प्रकार से अपने पपेट को वहां खड़ा करना चाहता है, भारत ने कभी भी इस तरह का प्रयास नहीं किया। और आप देखे होंगे कि जब तालिबान की वापसी हुई थी अफगानिस्तान में अमेरिका के जाने के बाद, उस समय इंडियन जो है अपने लोगों को वहां से बहुत सुरक्षित तरीके से निकाला था, और बाद में ये महसूस किया गया अफगानियों द्वारा कि नहीं, इंडिया को जो है अफगानिस्तान में अपना काम करना चाहिए और इंडियन को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, जिससे कि वो, चूंकि इनका काम जो है, अभी देखेंगे कि वहाँ का जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रोड हैं, इन सब में भारत ने इन्वेस्ट किया है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है सहायता के रूप में किया है, वहां से कुछ रिटर्न के लिए नहीं किया है। इसीलिए अफगानिस्तान पर यूक्रेन युद्ध का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और धीरे धीरे हमारे संबंध अफगानिस्तान से और भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। थैंक यू सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन, जो चाइना ने एक सीपीसी रोड बना रही है जो जम्मू कश्मीर से ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान से होते हुए सीपीसी एक रोड बना रहे हैं सर इससे अफगानिस्तान एंड इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? अफगानिस्तान और इंडिया, देखिए, जो ग्वादर पोर्ट तक चाइना ने प्रोजेक्ट वो बनाया है, वो बहुत सामरिक है।
सामरिक दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण है। और चाइना चाह रहा है कि इंडिया भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो, क्योंकि उसे डर है कि यदि इंडिया पाकिस्तान के बीच में भविष्य में युद्ध होता है तो ये निश्चित है कि पीओके जो है पीओके पर भारत का कब्जा हो जाएगा। जो अभी मिलिट्री जो स्ट्रेंथ है दोनों का, उसको हम देखते हैं तो लगता है कि ऐसा हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो चाइना की कनेक्टिविटी पाकिस्तान से खत्म हो जाएगी, जो कि उसके लिए बहुत घातक होगा। इसलिए वो चाह रहा है कि उसका एक रास्ता अफगानिस्तान से भी बने, क्योंकि यदि अफगानिस्तान से रास्ता बनता है तो पीओके वाला जो एरिया है उसमें जो भविष्य में कभी मुसीबत आएगी, उस मुसीबत से निकला जा सकता है। इसलिए चाइना चाह रहा है कि उसका संबंध पाकिस्तान उसका संबंध जो है अफगानिस्तान से भी अच्छा हो, और भारत से भी संबंध सुधारने का प्रयास कर रहा है। और वो ये भी चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध ना हो, जिससे कि उसका जो प्रोजेक्ट है वो सुरक्षित रह सके। धन्यवाद सर। और सर्वप्रथम सर, जो 1962 के युद्ध में चाइना ने भारत की ऑक्साइड चेन अपना लिया, तो उसके सर वापस लाने के या कोई ऐसा कोई तरीका है जो इंडिया और चाइना से ऑक्साइड चेन जो मेरा है वो वापस आ सकता है? देखिए, अक्साई चीन का जो एरिया है 1962 की लड़ाई का जहां तक प्रश्न है, उस समय जो स्थिति थी और आज की स्थिति में बहुत फर्क है। 1962 में 1960 के दशक में हम लोग एटम बम बनाने के पोजीशन में थे। सरकार से ये कहा गया था कि यदि सरकार आदेश दे तो हम एटम बम का परीक्षण कर सकते हैं। लेकिन जो नेहरू थे वो वर्ल्ड लीडर बनने के चक्कर में इंडिया को एटम बम का परीक्षण करने नहीं दिया। यदि ऐसा होता तो शायद चाइना जो 1962 में भारत पर हमला नहीं करता। अभी की जो स्थिति है, उस स्थिति में चाइना हमसे आर्थिक क्षेत्र में और सैनिक क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका है। अभी उसको अक्साई चीन को वापस लाना ये कठिन कार्य है। ये अभी नियर फ्यूचर में संभव नहीं है, आसानी से ये नहीं हो सकता है। उसके लिए बड़े युद्ध की आवश्यकता है। ये अलग बात है कि कुछ पोजीशन में कुछ पॉइंट पर इंडिया जो है एडवांटेज पोजीशन में है, चाइना का पोजीशन ठीक नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन जितना बड़ा क्षेत्र है उस क्षेत्र को हासिल करना कठिन कार्य है। इसमें जो इंटरनेशनल एजेंसी हैं या फिर जो कंट्रीज हैं वो कभी भी कोई भी इसका सपोर्ट नहीं करेगा। दूसरी बात कि जब भी युद्ध होता है तो जोश में हम लोग अपने सभी कंट्री जो है जोश में अपने अपने देशों की तारीफ करते हैं और विक्ट्री की कामना करते हैं और सोचते हैं कि हम जीत जाएंगे। लेकिन यदि चाइना और इंडिया के बीच में वॉर होता है तो वो छोटा मोटा वॉर नहीं होगा, वो न्यूक्लियर वॉर होगा। और न्यूक्लियर वॉर में करोड़ों लोग मारे जाएंगे। और मुझे लगता है कि करोड़ों लोगों के जान के कीमत पर किसी भी क्षेत्र को हासिल करना उचित नहीं हो सकता है। इसलिए अभी नियर फ्यूचर में जो है ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी बात कि दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट जोन हैं वहां पर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है वो स्टेटस को बनाए रखना चाहती है, कभी भी नहीं चाहती है कि वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो। क्योंकि जैसे ही प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा वैसे ही जो हथियारों की बिक्री है वो खत्म हो जाएगी। कुछ देश हैं जिनकी इकोनॉमी
अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो सब हथियारों की बिक्री पे ही टिकी हुई है। यूरोप के बहुत से देश हैं जिसकी इकोनॉमी हथियारों पे टिकी हुई है। रशिया से इंडिया यदि आर्म्स लेना बंद कर देगा तो रशिया की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए ये सब हथियार बेचने का ये सब धंधा चलता रहता है और उस इमोशन में हम लोग न जाएं। ये अलग बात है कि अक्साई चीन जो है इंडिया का पार्ट था, चाइना ने उसको ले लिया, तो हमको अपनी भी कमजोरी देखनी होगी कि उस समय हमारी क्या कमजोरी थी, किस गलती के कारण जो हमसे गया, और अभी हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम उसको हासिल कर सकें। और हमको लगता है कि इसको हासिल करने का सबसे जो बड़ा वो ये होगा, कारण होगा, वो अपने आप को विकसित करना होगा। और जैसे ही हम लोग आर्थिक रूप से और सैनिक रूप से विकसित हो जाएंगे तो हो सकता है कि हम चाइना से बार्गेनिंग करने के पोजीशन में आ जाएंगे। इसलिए फिजिकल तौर पे मेरे समझ से अक्साई चीन भारत के पास अभी नहीं आ सकता है। धन्यवाद सर। Thank you, sir. Thank you so much. Now I want to invite Mr. Akash Kumar for vote for thanks. Akash ji, over to you. Thank you, Suraj, for inviting me. Thank you very much, sir, for your such an insightful talk. अभी तक सर हम लोग सेंट्रल एशिया के बारे में ऊपर का ज्ञान रख रहे थे, पर आज आपके इस वक्तव्य के बाद अभी गहराई से जानने का अवसर हमें मिला है। सेंट्रल एशिया में जो बाहरी ताकतें हैं, किस तरीके से राजनीति उनका है, उनका क्या मकसद है वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का, तो ये समझने का अवसर हमारे आपके टॉक के माध्यम से मिला। सर, आपने अपने टॉक में काफी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए। आपने शुरुआत किया किस तरीके से जो सेंट्रल एशिया है अभी देखा जाए तो ग्लोबल वर्ल्ड मैप पे एक इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। आपने अलग अलग प्लेयर्स के बारे में बात की, जैसे यूएसए, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ईरान हो गया, टर्की हो गया, और अंत में इसका क्या इंडिया से इसका क्या कनेक्शन है, इस पे भी चर्चा किया। यूएस को लेकर के आपने कई सारी इम्पोर्टेंट बातें बताई, इसमें है कि सबसे पहले कि इसका जो मकसद है किस तरीके से चाइना को कंटेन करने का है, साथ साथ में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को भी चेक करना है, उसे भी रोकना है। उसे यूएसएसआर जो कि वेस्ट की तरफ पहले अपना उसका अट्रैक्शन था, जब उसका ये भ्रम दूर हुआ तो उसने सेंट्रल एशिया में आकर के अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश की। बाद में ईरान भी रूस के मदद से या रूस के साथ साथ सेंट्रल एशिया को स्टेबलाइज करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगा। और चूंकि ईरान सर ऑलरेडी आपने बताया जैसा कि यूएस के साथ उसका रिश्ता उतना बढ़िया नहीं था, तो उसका एक लाजमी था कि वो सेंट्रल एशिया में क्या करे कि स्थिति को अपनी मौजूदगी को और मजबूत बनाए। आपने सर टर्की के रोल पे भी एम्फेसाइज किया कि किस तरीके से टर्की जो है बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है वो टर्की से होकर के गुजरता है, तो टर्की भी सेंट्रल एशिया के रीजन में इंटरेस्टेड है और टर्की जो कि आर्म सप्लाई में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकता है सेंट्रल एशिया में। सर, लास्ट में आपने चाइना के बारे में काफी चीजें बताई कि चाइना किस तरीके से सेंट्रल एशिया में इंटरेस्टेड है। इसमें आपने बताया कि चाइना सर, चूंकि चाइना का ये स्वभाव ही है कि वो कर्ज प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट करता है और उसी कंट्रीज को डेट ट्रैप में फंसा लेता है, तो ये आपने सर जिक्र किया चाइना के बारे में। साथ में आपने उइगुर्स मुस्लिम के बारे में भी बताया कि वो भी एक कनेक्शन बन जाता है चाइना का सेंट्रल एशिया में आने का। लास्ट में सर आपने बताया कि किस तरीके से बेमतलब के फ्यूटाइल प्रोजेक्ट से चाइना है जो कि सेंट्रल एशिया में अपना प्रेजेंस बना रहा है और दबदबा धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है और धीरे धीरे सेंट्रल एशिया को कोलोनाइज करने की ओर बढ़ रहा है। लास्टली सर, आपके टॉक में आपने इंडिया का भी जिक्र किया, जिसमें आपने बताया कि भारत का सेंट्रल एशिया से एक लंबा रिश्ता रहा है, सांस्कृतिक रिश्ता रहा है, जिसमें कि शिक्षा जो है एक अहम भूमिका निभाता आ रहा है। खास करके जो भारत की शिक्षा है वो थोड़ी सस्ती है, तो सेंट्रल एशिया से काफी सारे विद्यार्थी आते हैं यहाँ एजुकेशन पाने के लिए, और भारत के ऊपर पड़ने वाले अपने प्रभाव को भी हाईलाइट किया अपने टॉक में सर।
तो सर कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि जितने भी लोग यहाँ मौजूद होंगे आपके वक्तव्य को सुनकर सभी को एक तरीके से सेंट्रल एशिया का जो पूरा पिक्चर होगा आज क्लियर हुआ होगा। सर मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके हम लोगों को सेंट्रल एशिया के अंदर चल रही राजनीति से अवगत करवाया। मैं धन्यवाद प्रीति स्वराज का भी करना चाहता हूँ जिनके कारण ये वेबिनार आज हो पा रहा है। कमलेश जी का भी धन्यवाद जिन्होंने वेलकम स्पीच दिया, और आप सभी प्रतिभागियों का, पार्टिसिपेंट्स का, ऑडियंस का जो कि एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट जिन्होंने किया और लगातार अपनी रुचि को दिखाते हुए प्रश्न भी सामने रखे। तो सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आकाश जी, कमलेश जी, और स्पेशली टू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।